Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Express. So today we are going to discuss about some problems of linear algebra. Linear algebra के अभी तक हम लोगों ने सारे concepts को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है, if x and y are two singular matrices such that xy is equals to y and yx is equals to x, then x square plus y square equals to. So here it is given that x y equals to y and y x is equals to x, then x square plus y square equals to what? So ये matrix multiplication है. Obviously we are performing the matrix calculation, so it is not just an ordinary algebra. X square can be written as x plus x into x and y square can be written as y into y. Okay, now write this x in terms of this y and x, plus keep this y as it is and write this y as x and y. Okay, now you can see xy can be written as y and x. Okay, and then yx can be written in the form of x. Now yx is equals to x plus xy is equals to y, so our answer is x plus y. Okay, so the option is option A. Now the next question is, A, B, C, D and E are non-singular matrices of same order such that DA BEC is equals to I, then B inverse is equals to A, B, C, D and E. 5 मैट्रिक्स दिया गया है और हमें बोल रहा है कि D इंटू A इंटू B इंटू E इंटू C इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B इनवर्स. इसका एक ट्रिक्स है. ट्रिक्स कुछ इस तरह का है कि अगर आपको ऐसे सिचुएशन में आपको अगर इन्वर्स लिखने के लिए बोला जा रहा है तो यू जस्ट राइट इट इन दिस रिवर्स डायरेक्शन. ओके, लाइक अगर आपको B इनवर्स कहा जा रहा है तो राइट B इनवर्स एज E C D A. अगर मान के चलिए अगर आपको बोला जाता है कि E इनवर्स को लिखिए, E इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, C D A B, इस तरह से. ठीक है, E C D A, ऑप्शन C, इसका ऑप्शन होगा C. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट m to the power 4 equals to an identity matrix where I denotes the identity matrix and m is not equals to identity matrix, m square is not equals to I and m cube is also not equals to I, then for any natural number k m inverse equals to. अगर हम लोगों को बोल रहा है कि m to the power 4 is equals to I, तो m to the power 8 भी क्या हो जाएगा, I ही हो जाएगा. m to the power 4 into m to the power 4 I ही हो जाएगा. अब अगर हम लोगों ने दोनों साइड में m इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे m इन्वर्स रहेगा और 8 and -1 मिलके हो जाएगा m to the power 7 is equals to m इन्वर्स. ओके, m to the power 12 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाएगा. फिर m to the power 11 will be equals to m इन्वर्स. then m to the power 16 is also equals to identity matrix. तो m to the power 16 into m inverse which will become m15 is equals to m inverse. ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक नंबर का जो सीरीज मिल रहा है वो क्या है, 7 11 15 इस तरह से जा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका 7 है, कॉमन डिफरेंस इज 4. देन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, अगर हम k से रिप्रेजेंट करते हैं एनी टर्म को, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, m टू द पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू k हियर k माइनस 1 इंटू d. ये क्या है, ये है nth टर्म और kth टर्म इन एन AP सीरीज. ये एक AP सीरीज है ना, 7 11 15 इस तरह से 4 करके बढ़ते जा रहा है. ठीक है, इसका गैप 4 करके है, तो आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया. तो किसी भी kth टर्म को इसी AP सीरीज में अगर आपको निकालना है तो आप इसी मेथड से निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस k माइनस 1 इंटू डी. अब चलिए m इंटू a का वैल्यू क्या निकला हमें, 7 प्लस k का वैल्यू क्या है, अच्छा k तो अननोन टर्म है, minus 1 d is 4 which is equals to
m 7 plus 4k minus 4, so m to the power 4k minus 3, sorry plus 3, so m इनवर्स का जो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है वो ये है. So according to the option, it is option C. Okay, let us see the next question. What it says is if determinant of A is equals to 6, where A is a 3 by 3 matrix, then determinant of 2A inverse will be. Determinant of A is equals to 6 and A is a 3 by 3 matrix. Okay, 3 by 3 matrix, then 2A का इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा. यहाँ पे डिटर्मिनेंट का दो प्रॉपर्टी काम में आएगा. पहला प्रॉपर्टी क्या था, अगर एक मैट्रिक्स के साथ आपने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, A इज n बाई n मैट्रिक्स है, अगर आपने एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसी मैट्रिक्स का जो पहला वाला डिटर्मिनेंट था बिफोर मल्टीप्लाइंग विद कांस्टेंट, जो डिटर्मिनेंट था, उस डिटर्मिनेंट के साथ आपका कांस्टेंट टू द पावर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है. यानी कि अगर एक मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, तो ये वाला जो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू था पहले का, उसके साथ 3 क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो पहली बात आप देखिए, यहाँ पे 2a है, 2a, ठीक है ना. तो 2a का डिटर्मिनेंट क्या होता है जनरली, 2a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 क्यूब. क्यूब क्यों, क्योंकि a जो है वो 3 बाई 3 मैट्रिक्स है. ओके, सो इसका ऑर्डर इनटू इसका डिटर्मिनेंट क्या था 6, 8 इंटू 6 48. ओके, अब दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, पहले वाला डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल. तो अगर 2a का डिटर्मिनेंट 48 आता है, तो 2a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा 1 by 48. सो दिस इज द आंसर, 1 by 48. See the next question. Let A be a matrix. This is also a 3 by 3 matrix for some alpha and beta belongs to R. If A is orthogonal, then what will be the value of alpha and beta? The options are given and the matrix is given as such. A is equals to 1 by 9, 8 by 9, alpha by 9, minus 4 by 9, 4 by 9, minus 7 by 9, 8 by 9, 1 by 9, बीटा बाय 9. एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें जो कह रहा है कि ऑर्थोगोनल है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा. मैं एक बार और बता दूंगा, इससे पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो आप कॉलम, किसी भी 2 कॉलम को ले लीजिए और उनके एलिमेंट्स को प्रोडक्ट लेकर के, यानी कि मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा. यानी कि अगर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस किया तो आपको वैल्यू 0 आएगा. दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस किया तो वैल्यू 0 आएगा. तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है. तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है. तो 1 by 9 इंटू माइनस 4 by 9 प्लस 8 by 9 into 4 by 9 plus alpha by 9 minus 7 by 9 is equals to 0. Okay, 81 minus 4 plus 32, 81 plus minus 7 alpha, 81 is equals to 0. Okay, 81 को लेके हम गंगा में बहा देंगे and we will be left with minus 7 alpha plus 32 minus 4. Here it will be 28 is equals to 0. So 7 alpha is equals to 28, alpha is equals to 4. अल्फा का वैल्यू 4, हाँ ऑप्शन इज सी. लेकिन चलो बीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से. माइनस 4 इंटू माइनस 4 by 9 इंटू 8 by 9 प्लस 4 by 9 इंटू 1 by 9 प्लस माइनस 7 by 9 एंड बीटा बाय 9 इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई करेंगे 81 माइनस 32 प्लस 81 4 प्लस 81 माइनस 7 बी बीटा इक्वल्स टू 0. देन 81 इज गॉन. ओके, सो 81 इज गॉन. माइनस 28 माइनस 7 बीटा इज इक्वल्स टू 0. 7 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 28, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4. सो अल्फा का वैल्यू आया आपका प्लस 4 एंड बीटा का वैल्यू इज माइनस 4. सो ऑप्शन इज सी. तो अभी अगला क्वेश्चन
आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, दैट इज लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू ए 3x3 मैट्रिक्स है, ओके, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आपका जो मैट्रिक्स है ए, जो कि एक 3x3 मैट्रिक्स है, मान के चलिए 3x3 मैट्रिक्स है, ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका हर एक कंपोनेंट यानी कि ए आई जे जो आप लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन सा वैल्यूज बैठेगा। और वो कैसे डिसाइड होगा, ए आई जे कंडीशन दे रखा है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, ओके। सो ए विल बिकम, देखिए हम ऐसे लिखते हैं ना, A11 A12 A13 इस तरह से लिखते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, that will be 0, 4 minus 3, here it will be 3, here it will be 0, 9 minus 8, 8, here 5 minus 5 and this will be 0. आप देख सकते हैं this matrix is actually a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है, इफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, तब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है, 3x3, 5x5, 7x7, इस तरह का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है। और हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया आपका 0, एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ए इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 5 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज 40। दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखा है। ए का डिटर्मिनेंट 5 है और बी का डिटर्मिनेंट 40 है। और ये कह रहे हैं कि अगर हमने दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 इंटू 40, दैट विल बी 200। ओके, ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। ओके फाइन, नाउ अगला क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज सच, ए मैट्रिक्स ए इज गिवन लाइक दिस। बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 100 है, ट्रेस जो है वो 14 है, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। ट्रेस बोल रहा है ना, ट्रेस मतलब सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि a प्लस 5 प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 14। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ना कि a प्लस बी इक्वल्स टू 7। फाइन, ये एक इक्वेशन निकला हमारा। अब डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। a जैसे ही हमने a का निकालना है तो हमको एक मैट्रिक्स मिल रहा है 3x3 का, जो कि 5 0 0 1 2 0 3 4 एंड b। ओके, देन 0 का तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 3, इसके बाद इसको फ्रीज कर दीजिए, 2 0 0 5 0 0 and 3 4 and b, then plus minus 7, freeze this column and row and you get 2 0 0 5 0 0 1 2 and 0। ओके, जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये वाला डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विथ a 5 इंटू 2। ओके, सो 5 इंटू 2 b, बाकी का सब 0 ही आएगा। ओके, विच इज इक्वल्स टू 100 बोल रहा है, डिटर्मिनेंट 100 बोल रहा है। फाइन, सो 10 ab इज इक्वल्स टू 100, सो ab इज इक्वल्स टू 10। सो ये एक इक्वेशन मिला, ये एक इक्वेशन मिला। अब सीधी सी बात है, बिना सॉल्व किए भी हम बोल सकते हैं कि ए बी का वैल्यू अगर प्लस करने से 7 आता है और मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, तो किसी एक का वैल्यू 5 होगा और किसी एक का वैल्यू 2 होगा। ठीक है ना। तो a माइनस बी करने से क्या होगा, a माइनस बी करने से, इसके बाद इसका मॉड वैल्यू दिया है ना, यानी कि प्लस आए माइनस आए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 माइनस 2 करोगे तो भी 3 आएगा, या फिर 2 माइनस 5 करोगे तब भी आंसर 3 आएगा, तो आंसर विल बी 3। सो दिस इज द आंसर 3। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a इज इक्वल्स टू
अल्फा टू टू अल्फा, 2/2 मैट्रिक्स इज गिवन और कह रहा है कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू अल्फा टू टू एंड अल्फा एंड ए क्यूब का डिटर्मिनेंट वैल्यू 125 है। तो सीधी सी बात है, डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी यही है कि अगर आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, अब मान के चलिए ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 आ रहा है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 5 आया था। ओके फाइन, तो अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं हम। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5। तो अल्फा स्क्वायर ओके 5 9, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 3, अल्फा का वैल्यू 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल्स टू a 3/3 matrix has been given and it is asked that adjoint of A में जो लास्ट रो है वहाँ पे एक K वैल्यू लिखा हुआ है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि आपको एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट निकालने का 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है वो हमने डिस्कस किया था। 1 - 2, हाँ थोड़ा सा ये लेंथी लगता है लेकिन हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना नहीं है। -2 ओके, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिडिल लास्ट फर्स्ट, और इसको हम ऐसे घुमाते हैं 3 5n -2 3 5n -2 1 -2 -1 1 -2 -1 फिर 2 0 and 1 2 0 and 1। ओके, फिर मिडिल वाले को फिर से लिखेंगे 3 5 -2, फिर फर्स्ट वाले को फिर से लिखेंगे यहाँ पे 3 1 2 and 3। अब आपको कौन सा वाला चाहिए, आपको एडजॉइंट का, एडजॉइंट कुछ इस तरह के लिखे गए हैं ना, -11 -9 and 1 4 -2 -3 10 K and 7। हमें पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये वाला कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको बस इसका कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 × -2 0 × -2 दैट इज 0 -5, सो K इज इक्वल्स टू -5, K इज इक्वल्स टू -5। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैट्रिक्स दिया गया है, उसका टॉप रो ऑफ R इनवर्स पूछ रहा है, मतलब आपको एडजॉइंट फिर से निकालना होगा। एडजॉइंट निकालना है आपको 1 0 -1 2 1 -1 2 3 and 2, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। कैसे, 1 3 and 0 1 3 and 0 -1 2 and -1 -1 2 -1 2 and -1 देन 2 2 and 1 2 2 and 1। फिर इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे 1 -1 2 and 1। अब हमको सिर्फ पहला वाला रो चाहिए था, तो पहले वाला रो को ही लिखेंगे पहले। तो 2 × 1 2 -+3 3 × -1 -3 -0 0 + 1। ओके, सो इट इज़ 5 -3 and 1। अब अभी तक कंप्लीट नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट रो ऑफ ए इनवर्स। हमने तो सिर्फ एडजॉइंट का फर्स्ट रो निकाला है, दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ एडजॉइंट। तो हमें अगर ए इनवर्स का निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, हमें इसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1 × 2 -+3 0 -1 6 -2 5 -1 4 5 -4 1। तो भाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 1 ही आया है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, 5 -3 and 1, सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, सो अभी हम लोग रैंक के कुछ प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 मैट्रिक्स, और इसका रैंक बताना है। चलिए इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, रो 3 को हम रो 1 से माइनस कर देंगे। रो 3 को हमने रो 3 - रो 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 -1 and 0, और ये 0 0 0। इसके बाद ये हो गया हमारा इक्लोन फॉर्म, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, आप देखो ना, इसके साथ ऐड करोगे तो ये वाला 0 ज़रूर होगा, लेकिन ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा। आप इस रो को 0 नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2, देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 2। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज सी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे। ओके, यहाँ पे आई का कंडीशन दे रखा है 1 से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर।
और j का वैल्यू n से कम या बराबर होना चाहिए, जबकि n का वैल्यू 3 से बड़ा या फिर 3 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो n को हम 3 ले लेते हैं, n को हम 3 ले सकते हैं। अगर n को 3 लेंगे तो j का वैल्यू 3 से कम या 3 के बराबर हो सकता है, और i का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा। तो हम एक 3x3 मैट्रिक्स को लेके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन। सो हम इसके जो एलिमेंट्स है वो कैसे होंगे, एलिमेंट का कंडीशन दे रखा है i इंटू जे, तो i इंटू जे, आई इंटू जे, आई इंटू जे सब में लिखना है। तो यहाँ पे i का वैल्यू भी 1 होता है, j का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। i एंड j 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 3 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाता है 2 इंटू 1 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा फिर से 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 6, देन ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, देन ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। ओके, अब आपको इसका रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए आप इसको एक्लॉन फॉर्म में लेके जा सकते हैं। हाँ, अब देखिए ये वाला जो रो है, क्या ये इससे प्रोपोर्शनल है? हाँ है। इसके साथ प्रोपोर्शनल है? हाँ है। तो देखिए R2 माइनस 2 इंटू R1 एंड R3 माइनस 3 इंटू R1, ऐसा करेंगे तो हमें जो रो मिलेगा वो है 1 2 एंड 3, ये बराबर रहेगा। लेकिन दिस माइनस 2 इंटू दिस किया तो ये पूरा का पूरा रो 0 हो जाएगा। इसका 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया है तो ये भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया भाई? इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया आपका 1। ओके, ऑप्शन इज बी। अनदर मैट्रिक्स हैव बीन गिवन एंड हमें इसका रैंक बताना है। ओके, तो यहाँ पे पहले कुछ रो ऑपरेशन करेंगे। R2 को हमने R1 से माइनस किया, R3 को हमने R2 से माइनस किया, R4 को हमने R3 से माइनस किया, R4 को हमने R3 से माइनस किया। तो क्या हो जाएगा? 11 12 13 14, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 10, और यहाँ पे भी 10। फिर ये कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, इससे माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, इसके साथ इसको माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। देखिए आपका 3 रो प्रोपोर्शनल हुआ। अब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसको इससे माइनस करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि आप 2 रो को 0 कर सकते हैं, बाकी के 2 रो को आप भले 0 नहीं कर सकते। ओके, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 10 10 10 10 and then 0 0 0 0 0 0 0 0. So number of non-zero row is 2. So the rank of this matrix will become 2. Option is B. Okay. आइए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? सिंपल है, अगर इसने बोला कि रैंक का वैल्यू 2 है, इसका मतलब हम नीचे को 0 कर सकते हैं इक्लॉन फॉर्म में जब हम तब्दील करेंगे। तो आप देखिए कि कैसे कि किस तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आप इन दोनों को 0 कर सकते हो। उसी एलिमेंट्री ऑपरेशन का इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। आप देखिए इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे किस तरह से। दिस इज द R3 माइनस R1 प्लस R2। आप देखो दिस प्लस दिस करेंगे, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, यानी कि इसको 0 कर दिया। 7 प्लस माइनस 1 इज 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, यानी कि दिस प्लस दिस x माइनस दिस प्लस दिस विल बी ऑल्सो 0। 4 7 2 3 माइनस 1 5, 7 माइनस 4 प्लस 3, इसके बाद 6 माइनस 7 माइनस 1, और इसके बाद आएगा x माइनस 5 प्लस 2। तो ये वाला तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यू आर लेफ्ट विथ 4 7 2 3 माइनस 1 एंड 5, और यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे आ रहा है आपका x माइनस 5 प्लस 2। तो ज़रूर इसका वैल्यू भी 0 होगा, नहीं तो रैंक इसका 2 कैसे आएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। ओके।